Hello students, how are you? In our last class we started our chapter number 5th, the fundamental unit of life, that is cell, and in which we discussed about the general properties of cell, wood, history of the cell, okay, and we also discussed about the unicellular and multicellular organisms on the basis of number of cells, okay. Now in today's class I am starting the size and shape of cells. If we consider the shape and size, then there is no fixed size and shape of cells. The shape and the size of cells is depends on the specific function that performed by the cell. The size and shape of the cells is depend on the particular function or specific function which is performed by the cell, okay. There are lots of cells which have, some of the cells which do not have fixed shape, like the amoeba, which do not have fixed shape, while some of the cells have fixed shapes, okay. So we can say that in the shape some are regular and some are irregular. Regular like the nerve cells, neuron, and irregular like the amoeba, and it is depend on the function. If we consider the size, then again the size, there is no fixed size. Depending on the function, it may vary animal organism to organism. But if we consider the smallest, if we consider the some GK topic related about the size, then the three questions: first is smallest cell, second is largest cell, and third is longest cell. The smallest cell, that is mycoplasma. Mycoplasma, which is also called PPLO. PPLO. It is the smallest cell of the world. ये वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है. लार्जेस्ट सेल की बात करें तो दैट इज ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच एग जो अनफर्टिलाइज्ड है, अनफर्टिलाइज्ड जो है, मतलब जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अनफर्टिलाइज्ड एग को एक सिंगल सेल माना जाता है. और ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो 15 सेंटीमीटर साइज का है, तो तब तक उसको क्या माना जाएगा, एक सिंगल सेल. तो दैट इज लार्जेस्ट सेल. और अगर लॉन्गेस्ट सेल की अपन बात करें तो दैट आर नर्व सेल्स. नर्व सेल्स ऑफ जाइंट स्क्वाड. जाइंट स्क्वाड. जाइंट स्क्वेड नाम का जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी जो नर्व सेल है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सेल कंसिडर की गई है. हालांकि कुछ बुक्स के अंदर अभी भी, एक पहले के टाइम पर जो चलता था कि जिराफ की जो नेक की जो न्यूरॉन होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट मानी गई थी, लेकिन अभी ये थोड़ा सा डाटा यहाँ पर चेंज हो चुका है, ओके. नाउ आफ्टर दैट डिस्कसिंग अबाउट द साइज एंड शेप, now let me discuss about the division of labor. Division of labor. The question comes in our mind, what is division of labor? डिवीजन ऑफ लेबर का हिंदी में मतलब बोले तो बोलते हैं श्रम का विभाजन, कार्य का विभाजन. जैसे अपने फॉर्म में फैमिली के अंदर डिवीजन होता है वर्क का. मम्मी जो है वो किचन का वर्क संभालती है, पापा जो बाहर की जो भी इनकम का काम है या जो मार्केट का वर्क है वो सब करते हैं. अपने पर्टिकुलर टास्क अपने फैमिली ने डिसाइड कर रखे हैं, जैसे अपना पढ़ना है या कुछ पर्टिकुलर टास्क अपने को दिए जाते हैं. उसी तरह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी
वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसके लिए वर्ड का काम में लिया जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं अपन? डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर की दो लेवल पर अपन डेफिनेशन बोल सकते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स और इन सेल्स। अगर ऑर्गेनिजम्स लेवल पर बात करें तो बोला जाता है इन ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय पर्टिकुलर पार्ट्स या पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स। इन ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलर फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय particular organ or particular body parts like the heart pump the blood, stomach digest the food, kidneys separate the waste from the body. So that kind of division of work is known as division of labor in the organism. If we consider in at the level of the cells, then we can say that in the cells there are सर्टेन, पर्टिकुलरली अपने इतना कोई काम का नहीं, बस एक जनरल बात थी यहां पर। सर्टेन कंपोनेंट्स इन सेल्स, देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स या स्पेसिफिक कंपोनेंट्स टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। सर्टेन वर्ड काम में ले सकते हैं या अपन लिख सकते हैं specific तो और in the cells certain or specific components are present which perform certain या specific या particular functions. These components which are performing the particular functions are known as सेल ऑर्गेनेल। इन्हें क्या बोला जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स एंड दिस फिनोमिना, जो पर्टिकुलर ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दिस फिनोमिना इज नॉन एज डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स। इसे क्या बोला जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स बोलते हैं। गॉट इट? तो यहां पर ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल ऑर्गेनेल? तो अपन क्या बोल सकते हैं? द स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल, द स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल which perform specific functions are called cell organelles. उन्हें क्या बोला जाता है? cell organelles बोलते हैं। Got it? A cell is able to live and perform its particular function because of the cell organelle. एक सेल जो है वो अपने पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म कर पाती है सेल ऑर्गेनेल्स के कारण। इसके कारण से सेल ऑर्गेनेल्स के कारण से परफॉर्म कर पाती है। These cell organelles combine together and make सेल। क्या बना देते हैं? सेल यहां पर बनाते हैं। जैसे सेल ऑर्गेनेल में अपन बात करें, आगे अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड सिंथेसिस के लिए रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का वर्क परफॉर्म करने के लिए प्लास्टिड्स, बॉडी के अंदर सेल्स की बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसके लिए लाइसोसोम्स। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। Got it? So we can say that particular functions performed by particular components which are known as cell organelles. Clear? Now, after that, let me discuss about the structure of a cell, or we can say that what the cell is made up of which parts. Cell जो है वो किससे मिलकर बनती है? That means structure of cell. Structure of cell. सेल के वैसे तो बहुत सारे मेजर पार्ट्स हैं, लेकिन अगर अपन मेन पार्ट्स की अपन बात करें
तो देर आर 3 पार्ट्स, सेल के 3 पार्ट्स कंसिडर कर किए गए हैं, मेन 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन. फर्स्ट पार्ट इज सेल मेम्ब्रेन. सेकेंड पार्ट इज nucleus, and third part is cytoplasm. So these 3 are main parts of cell. इनको क्या बोलते हैं? These are main 3 parts of cell. अच्छा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसे कलेक्टिवली बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं इनको? प्रोटोप्लाज्म. तो अगर इनको कलेक्टिवली बोला जाएगा तब तो 2 पार्ट हुए. कौन कौन सा? सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म. और अगर प्रोटोप्लाज्म को अपन डिवाइड करके बोले तो मेनली कितने पार्ट हुए? देयर आर 3, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ओके, इफ यू मेक द फ्लो चार्ट अबाउट द सेल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, देन वी कैन मेक a flow chart to understand the composition of a cell. Got it? If we make it, then we can say that cell is particularly, अब थोड़ा सा अपन जो अपन ने पढ़ा है उसको थोड़ा डिस्क्राइब मैनर में अपन बात करें तो सेल जो है पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पर्टिकुलरली किस में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है. First is called cell membrane or it is also called plasma membrane. जो second part है that is protoplasm. अब cell membrane और protoplasm क्या है? Suppose that is a cell. इसकी जो outer membrane है, outermost layer जो है, that is called cell membrane. और इसके अंदर जो कुछ भी है, जिसके अंदर एक तो न्यूक्लियस है और ये जो है इसे साइटोप्लाज्म, इससे कवर्ड जितना भी मटेरियल है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म. और ये प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट हैं. कौन कौन से? एक तो आ गया न्यूक्लियस और एक आ गया साइटोप्लाज्म. इन दोनों को कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं? दैट आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. Got it? So that is protoplasm. So again, protoplasm is divided into 2 parts. One is nucleus, and second is cytoplasm. Got it? Cytoplasm further divide into 2 components. Cytoplasm जो है वो किस में डिवाइड होता है? 2 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड होता है. एक कहलाते हैं सेल इंक्लूजन्स. और सेकंड कहलाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स. सेल इंक्लूजन्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स. साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक सब्सटेंस है. कैसा होता है? जेली लाइक सब्सटेंस है. इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें जो ऑर्गेनल जो डेफिनेट स्ट्रक्चर की जो कंपोनेंट है वो तो है सेल ऑर्गेनल. उसके अलावा जो उसका लिक्विड कंपोनेंट वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा? सेल इंक्लूजन्स. जो बनता है मेनली वाटर, इसके अलावा साल्ट्स, मिनरल्स, गैसेस, प्रोटीन, लिपिड एंड वेरियस अदर्स जो आगे पर बात करेंगे. तो ये सब चीजें जो हैं वो सब मिलकर क्या बनाती हैं? सेल इंक्लूजन्स. सेल ऑर्गेनेल में अपन बात करें तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बनी हुई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर शेप्स हैं जो सेल के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. उनमें अपन बात करें तो सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER. सेकेंड इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस. थर्ड की अपन बात करें तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. फोर्थ अपन कंसिडर करें माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा फोर्थ अपन कंसिडर करें तो दैट आर
लाइसोसोम्स। गॉट इट। इसके अलावा प्लांट्स में अपन बात करें तो प्लांट्स के अंदर दैट इज प्लास्टिड्स एटसेट्रा, और भी बहुत से हैं। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। तो इनसे मिलकर बनता है ये कंपाउंड, इनसे मिलकर बना होता है। अच्छा, इनके अलावा एक सेल वॉल और पाई जाती है, सेल वॉल और प्रेजेंट होती है, बट इट इज ओनली इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जब अपन बात करेंगे तो ये सेल वॉल नाम का एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा यहां पर इंक्रीज्ड होता है। गॉट इट। सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। ये सेल की बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लियर, अंडरस्टैंड। चलो, अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बात करना सेल मेम्ब्रेन के बारे में। व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? If we consider the definition, then we can say that the outermost layer of the cell which separate it from the external environment is known as cell membrane. उसे क्या बोला जाएगा? Cell membrane. Cell membrane is also called प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पर्टिकुलर अपन डेफिनेशन बोले तो क्या बोल सकते हैं अपन? दैट इज आउटरमोस्ट लिविंग स्ट्रक्चर। लिविंग होती है ये, डेड नहीं होती है। लिविंग स्ट्रक्चर which separates the components of the cell या constants of the cell from the external environment. From the external environment is known as cell membrane. उसे क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर अपन इसकी डिस्कवरी की अपन बात करें तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल नेगली in 1855 के अंदर कार्ल नेगली जो है उन्होंने इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया था लिविंग सेल्स में, और फिर उसे उन्होंने ही नाम दिया था, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। गॉट इट। पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की अपन साइज की अपन बात करें तो इट इज 75 to 105 एंगस्ट्रॉम। कितनी रहती है? 75 से लेकर 105 एंगस्ट्रॉम थिक, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, विच इज मेड अप बाय, जो बनती है प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। इसकी बनी होती है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स, या बुक्स के अंदर केवल यहां पर वर्ड काम में लिया जाता है लिपिड्स। क्या वर्ड काम में लेते हैं अपन? लिपिड्स का। गॉट इट। these molecules are arranged into 3 layers. थ्री लेयर्स के अंदर ये अरेंज्ड होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज अलग अलग मॉडल्स दिए गए थे, जिसमें से जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो मॉडल है दैट इज 3 लेयर्ड मॉडल, जिसमें सेल मेम्ब्रेन को 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, बताया गया है, जिसके अकॉर्डिंग जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं या लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से अरेंज्ड है दोनों साइड्स में, और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये इनके बीच में या दोनों सरफेस तक इस तरह से फैले हुए होते हैं। तो ये होती है दैट इज 3 लेयर, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। गॉट इट। तो अपन बोल सकते हैं दैट इज सेल मेम्ब्रेन इज ए 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। गॉट इट।
अबाउट द, अच्छा इतनी फाइन है कि इसे ओनली इफ वी वांट टू स्टडी अबाउट इट देन वी ओनली बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इसको स्टडी किया जा सकता है. गॉट इट? अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन we will discuss in next class. Thank you.